اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، اس وقت میں سفر میں ہوں اور ریاست مہاراشٹر کا ایک مشہور شہر ہے بیڑ۔ بیڑ میں ایک ادارہ ہے جامعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ الحمدللہ یہ ادارہ 2 سال کی قلیل مدت میں اپنا ایک زبردست سنہری سفر طے کر چکا ہے، اور اس ادارے کا گزشتہ کل رات میں دوسرا سالانہ اجلاس تھا، جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے مدعو کیا گیا تھا۔ جامعہ حسان بن ثابت کا پروگرام انتہائی کامیاب رہا۔ علاقے کے تقریباً تمام بڑے علماء بڑی تعداد میں اسٹیج پر شریک رہے، موجود رہے، اور بیڑ شہر کا ہزاروں کا مجمع، جوانوں کا مجمع جامعہ کے احاطے میں اجلاس عام کو سننے کے لیے شریک رہا۔ اس اجلاس میں جامعہ حسان بن ثابت کے طلباء نے بہت ہی عمدہ تقاریر، نظمی، مکالمے، ڈرامے پیش کیے اور سامعین کو محظوظ کیا، اور سامعین نے دل کھول کر انعامات سے بھی نوازا۔ مولانا محسن صاحب جو اس ادارے کے ناظم ہیں، ذمہ دار ہے، انہوں نے اس کے سالانہ رپورٹ بھی پیش کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ادارہ بہت ہی کم مدت میں علاقے کا ایک عظیم ادارہ، ایک متحرک ادارہ بن چکا ہے، اور لوگوں کی توجہات اس ادارے کی طرف بڑی محبتوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جب میری تقریر ہوئی، میں نے علم کی اہمیت پر، عصری علوم، دنیاوی علوم، دینی علوم کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو کی، اور بچوں کی دینی اسلامی تربیت کی طرف توجہ دلائی، اور ادارہ مدرسہ کیا کرتا ہے، کیا کر رہا ہے، اور مدارس کا کتنا احسان ہے امت پر، ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا، اور اہلیہ نے بیڑ سے اپیل کی کہ ابھی یہ ادارہ ٹین شیڈ میں ہیں، آپ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جلد از جلد ادارے کی خوبصورت عمارت ہو، اس کی آپ فکر کریں۔ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر جان کر اس بات کا عہد کیا کہ انشاءاللہ جلد ہی ادارہ اپنی عمارت میں منتقل ہو جائے گا، آمین۔ خیر، پروگرام بڑا کامیاب رہا، اور محنتیں کرنے والوں کی محنتیں رنگ لائی، اور جوانوں نے بھی بڑے پرجوش انداز میں علماء کا استقبال کیا۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ سلطان الہند، امیر الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ اور مقبرہ آپ جانتے ہیں کہ اجمیر میں ہیں، جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہندو مسلم ایک ساتھ وہاں پر جاتے ہیں، اور اجمیر کی جو درگاہ ہے وہ راشٹریہ ایکتا کا پرتیک مانی جاتی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں شرارتیں عروج پر ہے، شیطانی حرکتیں عروج پر ہے، اور اب بھگوا آتنکیوں کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ درگاہ اجمیر شریف کا بھی گیان واپی مسجد کی طرح سروے کرایا جائے، ایسا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہندو شک
शक्ति दल, यानी ऐसे कितने आतंकी दल बनेंगे आप समझ सकते हैं। हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष ने के मुतनाज़ा बयान पर हंगामा भी हो रहा है। अक़लियती कमीशन ने जिला मजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम दिया है, कार्रवाई की अपील की है, 7 दिनों में रिपोर्ट भी मांगी गई है। लेकिन यह खबर बता रही है कि शरारतें शुरू है। और मैं बार बार लोगों से ये कह रहा हूं कि 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए हर शरारत की जाएगी। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर रियासत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। हम 5 साल तक लखनऊ में रहे हैं, नदवतुल उलमा में पढ़े हैं। लखनऊ नदवतुल उलमा के करीब एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है जिसे टीले वाली मस्जिद के नाम से याद किया जाता है, जो इमाम बाड़े के सामने है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। लेकिन चलिए आइए, अब फिर अफसोसनाक खबर आ रही है कि भगवा आतंकियों ने लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर भी अब मुतालबा कर दिया है कि यह टीले वाली मस्जिद असल में लक्ष्मण टीला है। और यह भी कह दिया, और खास बात यह है कि जब यह मामला कोर्ट में गया तो फिर मुस्लिम फरीक को कोर्ट से बड़ा झटका लगा, क्योंकि अदालत ने हिंदू फरीक की अर्जी पर समाअत को तैयार हो चुकी है। अदालत ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब टीले वाली मस्जिद को लेकर अदालत में सुनवाई का रास्ता हमवार हो गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में वाक़ लक्ष्मण टीला तनाज़े पर सिविल कोर्ट ने बुध के रोज इंतहाई अहम फैसला सुनाया, जो कि मुस्लिम फरीक के लिए एक शदीद झटका माना जा रहा है। दरअसल टीले वाली मस्जिद के ताल्लुक से मुस्लिम फरीक ने रिवीजन पिटीशन अदालत में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने निकाल कर फेंक दिया और हिंदू फरीक की अर्जी पर समाअत के लिए अदालत तैयार हो गई है। यानी आप समझ लीजिए कि फिर अब यह मामला भी अदालत में शुरू हो जाएगा। और अदालतों से किस तरीके से फैसले आ रहे हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आइए, चेन्नई से मद्रास से एक बड़ी अफसोसनाक खबर फिर आ रही है कि चेन्नई की बड़ी खूबसूरत तारीखी कदीम मस्जिद है मस्जिद हिदाया। मस्जिद हिदाया को मुनहदिम कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के जो फैसला था इन्हिदाम का, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा और 31 मई तक इन्हिदामी कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लाल मस्जिद, कदीम तारीखी बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत दे दी है कि इस मस्जिद हिदाया को मुनहदिम किया जाए। गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा मस्जिद हिदाया और मदरसे को मुनहदिम करने की चेन्नई म्युनिसिपैलिटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है, जिससे मुसलमानों में बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह ढांचा मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मस्जिद और मदरसे के मामले में मद्रास हाई कोर्ट का जो हुक्म था मुनहदिम करने का उसको बरकरार रखा और 31 मई तक इन्हिदामी कार्रवाई का आदेश दे दिया। आइए, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश, बड़ा हुक्मनामा जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ईडी किसी को भी सम्मन जारी कर सकती है और ईडी ने अगर किसी को सम्मन जारी किया तो उसे सवाल का जवाब देने के लिए, इंक्वायरी के लिए हाजिर होना होगा। जाहिर बात है कि यह फैसला ऐसा है कि जो कई सियासी लीडरान के लिए मुसीबतें बढ़ा सकता है। मंगल के रोज एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर कोई जांच बैठती है और ईडी किसी को सम्मन जारी करती है तो इस सम्मन का एहतराम करना और जवाब देना लाजमी है। यानी ईडी ने अगर बुलाई तो आपको जाना लाजमी है। अब जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब बड़े बड़े सियासी लीडरान परेशान हैं। अब इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अब और देखिए कि कितनी तेजी से लोग बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में जाते ही वॉशिंग पाउडर निरमा सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं, सारे घपले सारे घोटाले खत्म कर दिए जाते हैं। इसलिए अब बड़ी तेजी के साथ में जो लोग रुके हुए हैं शायद बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि नहीं बैठे तो ईडी आ जाएगा।
आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मोदी ने पूरे मुल्क के जवानों के साथ धोखा किया और एक स्कीम लाई थी, अग्निपथ स्कीम, जिसमें जवानों को फौज में शामिल किया जाएगा। अब 5 साल के लिए, 3 साल के लिए फौज में शामिल किया जाएगा, बाद में उसकी जिंदगी खत्म। इस स्कीम के ताल्लुक से अपोजिशन पार्टियों के लीडरान लगातार चिल्ला रहे हैं। इससे पहले बड़े बड़े लीडरान ने यह कहा था कि अग्निपथ स्कीम मुल्क के जवानों को धोखा देना है, मुल्क के जवानों की जिंदगियों को तबाह करना है। इस वक्त कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन का भी बड़ा बयान आया है कि अग्निपथ स्कीम के जरिए से हुकूमत फौज में भी तकसीम पैदा कर रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की कितनी घटिया हरकत है कि फौज में भी वही अंग्रेजों वाली स्टाइल, फूट डालो राज करो। तो अधीर रंजन ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के जरिए से हुकूमत फौज में भी तकसीम पैदा कर रही है और दूसरी तरफ मुल्क के नौजवानों के साथ बड़ा धोखा कर रही है। खैर, अग्निपथ स्कीम जो है जब आई तो बड़ी जोरों शोर से चली, लेकिन 3-4 महीने के बाद ही अग्निपथ स्कीम के नुकसानात जवानों के सामने आने लगे कि अग्निपथ स्कीम में जो जवान बॉर्डर पर जाएगा, कई जवान जो शहीद हो गए तो उनको वो रुतबा, वो मकाम नहीं दिया गया जो एक फौजी जवान को दिया जाता है। और अग्निपथ स्कीम में जवानों की तकरीबन सारी फलाह बहबूद और आगे मुस्तकबिल के विकास की तमाम स्कीमें छीन ली गई। अब जाहिर बात है कि जो जवान 5 साल फौज में जाएगा, 3 साल फौज में जाएगा और उसके बाद खाली हो जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए अब जवानों की भी ये स्कीम समझ में आने लगी और मोदी ने जो बेवकूफ बनाया था वो अंधभक्ति का भी पर्दा निगाहों से हट गया। आइए नाज़रीन, रियासत गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, गुजरात के साहिल पर 3300 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई है। जी हां, रियासत गुजरात किसका है और किस हुकूमत के अंडर में, आप सब जानते हैं कि गुजरात फसाद के बाद बीजेपी के ही अंडर में गुजरात है, क्योंकि जहां फसाद होता है फिर उसके बाद में बड़ी आसानी से बीजेपी जीत जाती है, यह भी सबको मालूम है। गुजरात के साहिल पर 3300 किलोग्राम नशा आवर चीजें, मंशियात मिली है, जिसमें 5 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बरामदगी हिंदुस्तानी बहरिया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक मुश्तरका ऑपरेशन में यह मामला सामने आया है। आपको यह भी मालूम होगा कि मोदी जी के बड़े करीबी दोस्त, जिनके हाथ में मुल्क की कई चीजों को बेचा जा रहा है, अडानी के भी पोर्ट पर गुजरात में हजारों किलोग्राम मंशियात की चीजें बरामद हुई थी, लेकिन मीडिया ने उन तमाम चीजों को बड़ी आसानी से दबा दिया, क्योंकि अडानी का रिश्ता मोदी जी से बड़ा करीब का है। अगर कोई और होता तो मीडिया कुत्तों का भी रिकॉर्ड तोड़ देती, भौंकने में इतना भौंकती, लेकिन बीजेपी का मामला हो, अडानी जी का मामला हो तो फिर मीडिया इस पर खामोशी इख्तियार कर लेती है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फिर एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। आप जानते हैं कि ज्ञानवापी के तय खाने में पहले एक जज ने रिटायर होते होते पूजा करने की इजाजत दे दी, तो उसी वक्त मैंने कहा था कि जज साहब को इंशाअल्लाह बड़ा इनाम दे दिया जाएगा और मेरा ख्याल मिल भी गया होगा, वरना बीजेपी तो किसी बड़े मकाम पर बैठाई देगी। जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला देने वाले जज को राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया था, तो बड़े बड़े इनामात से ऐसे लोगों को नवाजा जाता है। अब तय खाने में बाकायदा पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई और अब वो मामला बिगड़ गया है। अब खबरें ये आ रही है, एक और अफसोसनाक खबर आ रही है कि तय खाने की छत पर आने जाने और नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा भी हिंदू फरीक की जानिब से अदालत में कर दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद तनाजे में हिंदू फरीक की जानिब से जिला अदालत में दरखास्त की गई है कि मस्जिद के जुनूबी तय खाने की छत वाले मस्जिद के हिस्से पर किसी का भी दाखिला ममनू करार दिया जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि तय खाने में पहले पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई, अब कुछ महीने के बाद में अब यह अपील की जा रही है कि तय खाने की छत के ऊपर किसी को आने जाने न दिया जाए, यानी धीरे धीरे नमाज की पाबंदी भी लगा दी जाए। अपनी दरखास्त में हिंदू फरीक ने दावा किया है कि 500 साल कदीम छत होने की वजह से यह हिस्सा कमजोर हो चुका है, नुकसान पहुंच सकता है, गिर सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि
किस तरीके से शैतानी हरकतें की जा रही है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आए सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब अंसारी ने एक बड़ी खबर भेजी है। मुंबई का मीरा रोड, आप जानते हैं कि 2 हफ्ता पहले मीरा रोड में दंगे और फसाद का माहौल बना था। भगवा आतंकवादियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया, मुसलमानों की दुकानों और मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। उसी मीरा रोड में फिर हिंदुस्तान का एक खबीस, मलून और मरदूद लीडर जो है टी राजा सिंह, जो हैदराबाद का बीजेपी का एमएलए है, मीरा रोड की रैली में आने वाला था। पुलिस इंतजामिया ने उसे इजाजत नहीं दी कि यह जहरीला सांप आएगा, फिर जहर उगलेगा और नफरतें फैलाएगा। लेकिन उसने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुंबई हाईकोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ उसे आने की इजाजत दे दी। लेकिन इसके बावजूद भी टी राजा सिंह आया और जहर उगला और मुसलमानों के खिलाफ नफरती बोल और जहरीले बयानात दिए हैं, जिसको लेकर मैंने मेरे चैनल के जरिए से आवाज उठाई थी कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसके बयानात की इंक्वायरी की जाए, इसकी वीडियो क्लिप्स चेक किए जाए कि किस तरीके से इसने मुंबई हाईकोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ाई है। जिस पर गुज़िश्ता कल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खबर आई थी कि बाकायदा उसकी तकरीरों को चेक किया जा रहा है और फिर उस पर कार्रवाई की जा सकती है और होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि जब तक कि इन जहरीले सांपों के फनों को कुचला नहीं जाएगा, मुल्क से नफरतें खत्म नहीं होगी। और बीजेपी के विधायक और बीजेपी के कार्यकर्ता यह समझते हैं कि उनके बाप की हुकूमत है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, जिसकी वजह से मुल्क में दंगे और फसाद का माहौल फैल रहा है। खैर, मीरा रोड से एक और खबर आ रही है कि जो कच्ची आबादी है वहां गोदामों में आग लग गई है, जिससे एक शख्स हलाक हुआ है और 3 लोगों के जख्मी होने की खबरें भी आ रही है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है पत्रकारों को लेकर। आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ मीडिया भारत के पत्रकारों की नंबर 1 की संगठन है, जिसका मैं खुद उर्दू डिपार्टमेट का राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे हिंदू भाइयों ने मुझे बनाया है। और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के हाथों मेरा सत्कार और सम्मान राजभवन में गवर्नर हाउस में किया गया था। उस संगठन का मैं एक जिम्मेदार शख्स हूं। वॉइस ऑफ मीडिया ने मुंबई में एक प्रोग्राम लिया और पूरे मुल्क में वॉइस ऑफ मीडिया पत्रकारों को जमा कर रही है। 40,000 से ज्यादा पत्रकार वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़ चुके हैं। वॉइस ऑफ मीडिया पत्रकारों के हुकूक की लड़ाई लड़ रही है। पत्रकारिता और पत्रकार कैसे महफूज रहे, इसको लेकर लड़ाई लड़ रही है। गुज़िश्ता कल पत्रकारों ने बाकायदा वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला फडणवीस, अजीत पवार और काबीना वजीर शंभूराज देसाई का घेराव किया, क्योंकि सहाफियों के सम्मान योजना पर हुकूमत पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रही है और पत्रकारों के हुकूक और मुतालबात को मानने को तैयार नहीं है। और जो हक पत्रकारों को पहले दिया गया था, बीजेपी के दौर में यह हक छीन लिया गया है, जिस पर पत्रकार गुस्साए नजर आ रहे हैं।